अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. In previous video, we were discussing about the lesson number 7, sports and sportsmanship. खेल और खिलाड़ी का उसको खेलने का तरीका। First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter. It is an indisputable fact that games play an important part in our lives. Not only are these essential for the development of our bodies, but are responsible for inculcating in us certain qualities too. For example, a healthy spirit of competition, a sense of discipline, courage, and above all, sportsmanship. Sportsmanship is the highest ideal a sportsperson should strive for it. It does not matter whether you win or lose the game, but how you play it. You should participate in the game in a fair spirit, without any thought of breaking the rules or using unjust means to win. Sportsmanship also implies accepting defeat with a smile and conceding victory to the better team or player. If you have lost today, you may, with hard work and perseverance, win tomorrow. So, neither be boastful about victory nor depressed over defeat. Nowadays, sportsmanship is on the decline. The teams are not generous towards each other, and sometimes they take out their frustration on the umpire. At times, it is the crowd which shows unsporting behavior, and matches have to be stopped halfway due to the hooliganism and rowdiness. Whenever we play games or participate in athletic, we should keep in mind that if you can meet with triumph and disaster and treat those two important just the same. Sportsmanship means working in the spirit of healthy competition for the achievement of a common goal. It also means team spirit, which means the qualities of discipline, punctuality, obedience, and cooperation. Achieving something through cooperative and disciplined effort means sportsmanship, and it is how the goal can be achieved and not who achieves it. Games should be played not for victory alone but for the sake of game also. A sportsman should not feel depressed in defeat and not lose his head over victory because it is a collective defeat or victory. Sportsmanship demands discipline. One should not hit one's opponent below the belt and should never resort to unfair means to win a match. He should have a balanced mind to play a fair game. Sportsmanship also demands that one should obey one's leader in every circumstance, for he knows what is best under a given circumstance. Since the world is like a ground over which the game of life is played, sportsmanship is one of the greatest quality of life. The games lessen their intensity and joy doubles if we take life with the spirit of sportsmanship. People who lack sportsmanship are intolerant, self centered, and narrow minded and cannot work for others' good, which is a sad thing. In the final analysis, sportsmanship is definitely a quality worth developing in oneself. There are various kinds of games. In the villages, such games as kabaddi, gulli danda, and kho are still popular. But with the introduction of a Western type of education, these ancient games are steadily going out of use, especially in our growing towns and cities. Cricket, football, lawn tennis,
Volleyball and badminton are the most common form of sports these days in our schools and colleges. Sports are of great importance in the development of the body as well as the formation of character. It teaches us discipline, unity, and comradeship. In European countries, sports are regarded as an essential part of the educational system. The poor showing of our players in the Asian Game has proved the inability of our sport authorities to take proper care of our players. In spite of these disadvantages, a steadily growing interest is being shown by our youth in the present age, and this is as it should be. It is a well known fact that outdoor sports of some sort of the or the other are necessary for the preservation of our health. To keep the body fit and healthy, some exercise is absolutely essential. Without some exercise of our limbs, disease creep in our body system sooner or later. Outdoor games offer this facility of exercise and make the body healthy and strong and capable of enduring hardships. Moreover, these games being played in the open, we are able to breathe fresh and pure air, which is so vital to the maintenance of our health. No indoor games present such a facility. So, student, this is a brief introduction about this chapter. Now we move on to the exercise of this chapter. First one is vocabulary question. Differentiate between indoor and outdoor games. Write them in proper column. अंदरूनी और बैरूनी खेलों में फ़र्क बताएं और उनको कॉलम्स के अंदर लिखें। यहाँ पर बेटा कुछ गेम्स के नाम दिए गए हैं, हमने उनमें से इंडोर और आउटडोर गेम्स को सेपरेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉकी। हॉकी क्या है? आउटडोर गेम है, तो यहाँ पर हम आउटडोर में क्या लिखेंगे? हॉकी। यहाँ पर लिखेंगे हॉकी। स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल क्या है बेटा? इंडोर गेम है, तो हम यहाँ पर स्क्रैम्बल लिखेंगे। पोलो आउटडोर गेम है, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है चेस। चेस जो है इंडोर गेम के अंदर आता है। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल आउटडोर गेम है। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है ये इंडोर गेम है। इसके बाद है कैरम बोर्ड, ये भी इंडोर गेम है। इसके बाद हर्डल। हर्डल रेस है, ये आउटडोर गेम है। नेक्स्ट वन इज़ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल भी क्या है? आउटडोर गेम। लूडो इंडोर गेम। क्रिकेट आउटडोर गेम में आएगा। रिले रेस ये क्या है? इसके अंदर आएगा आउटडोर गेम के अंदर। इसके बाद है स्विमिंग, ये भी आउटडोर गेम के अंदर आएगा। इसके बाद है हाई जंप। हाई जंप भी आउटडोर गेम के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको सेपरेट सेपरेट कॉलम्स के अंदर लिख देना है। नेक्स्ट वन रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन के अंदर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ए है, समराइज द आइडिया ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप का आइडिया इसके बारे में आप लिखें या इसको समराइज़ करें। इसका हम चैप्टर की ट्रांसलेशन के अंदर भी आंसर दे चुके हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में लिखेंगे तो प्लेयर्स होना चाहिए, प्लेयर्स का ताल्लुक रूल्स से, फिर उसके बाद गेम्स और फिर रिस्पेक्ट फॉर, इस तरीके से इसको करके एक आइडिया देना है। तो यहाँ पर आइडिया जो है इस बार इस तरह से है, स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स फेयर, generous and polite behavior, especially when playing a game or sport. It means to follow the rules of the game we are playing honestly. It also means to accept our defeat wholeheartedly without being emotional. खिलाड़ीपन या इंसाफ पसंदी से मुराद है मुनसिफाना, फ़याज़ाना और शाइस्ता रवैया, ख़ुसूसन जब आप एक खेल खेल रहे हों। इसका मतलब है उस खेल के कवायद और ईमानदारी से पैरवी करना जिसे आप खेल रहे हैं। इसका मतलब है जज्बाती हुए बगैर खुले दिल से अपनी शिकस्त को कबूल करना। इसको दोबारा से देख लें। स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स फेयर, मुनसिफाना, जनरस है, फ़याज़ाना या खुले दिल से, पोलाइट बिहेवियर शाइस्ता रवैया, स्पेशली ख़ास तौर पर वन प्लेइंग अ गेम और स्पोर्ट, जब आप कोई खेल खेल रहे हों। इट मीन्स इसका मतलब है टू फॉलो द रूल्स, कवानीन को की पैरवी करना, ऑफ द गेम खेल के, वी आर प्लेइंग जो हम खेल रहे हैं, ऑनेस्टली ईमानदारी से। इट ऑल्सो मीन्स इसका ये भी मतलब है टू एक्सेप्ट कबूल करना, आर डिफीट हम अपनी शिकस्त को, होल हार्टेडली खुले दिल से, विदाउट बगैर, बीइंग इमोशनल जज्बाती हुए बगैर। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मुंदरजा झैल सवालात के जवाब दें। फर्स्ट वन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप का क्या मतलब है? सो द आंसर इज़ sportsmanship means fair, generous and polite behavior, especially when playing a sport or game.
खिलाड़ीपन से मुराद है मुनसिफाना, फ़याज़ाना और शाइस्ता रवैया, ख़ुसूसन जब आप एक वर्जिशी खेल या खेल खेल रहे हों। सेकंड वन, वाई शुड वी नॉट चीट इन अ गेम? हमें खेल में धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? सो द आंसर इज़, आर चीटिंग डिस्ट्रॉयज द स्पिरिट ऑफ द गेम वी आर प्लेइंग. It shows that we do not have the ability to play that game. हमारी चीटिंग या हमारे धोखा देने से उस खेल का मकसद ख़त्म हो जाता है जिसे हम खेल रहे हैं। ये ज़ाहिर करता है कि हमें उस खेल को खेलने की सलाहियत ही नहीं है। इसको बेटा दोबारा से रिपीट कर लें। वाई शुड वी नॉट चीट इन अ गेम? हमें खेल के अंदर धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? आर चीटिंग, हमारी धोखाधड़ी उस खेल के मकसद को ख़त्म कर देती है जिसे हम खेल रहे होते हैं। ये जाहिर करती है कि हम उस खेल को खेलने की सलाहियत ही नहीं रखते। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशन व्हेन यू लूज़? उस वक्त अपने जज्बात को काबू रखना क्यों अहम है होता है जब आप हार जाते हैं? सो द आंसर इज़, इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए होता है, व्हेन, जब, वी एक्सेप्ट, हम कबूल करते हैं, आर डिफीट, अपनी हार को, होल हार्टेडली, खुले दिल से, एंड डू नॉट बिकम, और नहीं होते, इमोशनल, जज्बाती। इट शोज़, ये जाहिर करता है, आर स्पोर्ट्समैनशिप, हमारी खिलाड़ीपन को, एंड जनरस बिहेवियर, और हमारे फ़याज़ाना रवैये को। इसको रिपीट करते हैं। इट इज़ बिकॉज व्हेन वी एक्सेप्ट आर डिफीट होल हार्टेडली एंड डू नॉट बिकम इमोशनल, इट शोज़ आर स्पोर्ट्समैनशिप एंड जनरस बिहेवियर। इसकी वजह यह है कि जब हम अपनी शिकस्त को खुले दिल से कबूल करते हैं और जज्बाती नहीं होते, तो ये बात हमारे खिलाड़ीपन और फ़याज़ाना रवैये को ज़ाहिर करती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, गेम्स ऑल्सो टीच अस टीम वर्क हाउ? खेलें हमें मिलजुल कर काम करना भी सिखाती हैं, कैसे? सो द आंसर इज़, while playing a game, we have to cooperate and collaborate with the other players to win. This practice help us learn good teamwork. एक खेल खेलते हुए हमें जीतने के लिए दीगर खिलाड़ियों के साथ ताउन करना पड़ता है। कोऑपरेट, ताउन करना, कोलैबोरेट, उनके साथ मिलजुल कर, विद द अदर प्लेयर्स, दूसरे खिलाड़ियों के साथ, टू विन, जीतने के लिए। दिस प्रैक्टिस, उस मश्क को, हेल्प अस, मदद करता है, लर्न गुड टीम वर्क, एक अच्छे मिलजुल कर काम करना या टीम की तरह खेलने का उसकी मदद करता है। एक खेल खेलते हुए हमें जीतने के लिए दीगर खिलाड़ियों के साथ ताउन करना पड़ता है। ये मश्क हमें मिलजुल कर काम करना सीखने में मदद करती है। फिफ्थ वन, विच गेम्स डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आप कौन सी खेलें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? सो द आंसर इज़, द गेम्स आई लाइक द मोस्ट आर क्रिकेट एंड हॉकी। मुझे सबसे ज़्यादा क्रिकेट और हॉकी पसंद है। आई लाइक देम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, बिकॉज, क्योंकि, दे कीप, वो रखती हैं, मी, मुझे, फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर, फिट, तंदुरुस्त, मेंटली अलर्ट, और जहनी तौर पर चाको चौबंद। द गेम्स आई लाइक द मोस्ट आर क्रिकेट एंड हॉकी। आई लाइक देम बिकॉज दे कीप मी फिज़िकली फिट एंड मेंटली अलर्ट। खेलें जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो क्रिकेट और हॉकी हैं। मैं उन्हें पसंद करता हूँ क्योंकि वह जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और जहनी तौर पर चाको चौबंद रखती हैं। नेक्स्ट सी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम इन द टेबल। टेबल में दिए गए कॉलमों की खाली जगह पुर करें। बेटा इसके अंदर गेम्स के नेम दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इंडोर है या आउटडोर है, उसका ड्रेस कैसा होता है, और उस खेल को खेलने के लिए किस किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उनके अंदर कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं। फर्स्ट वन, हॉकी। हॉकी जो है बेटा ये आउटडोर गेम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओ लिख रही हूँ, ठीक है। ड्रेस इसकी क्या है, शर्ट और शॉर्ट्स, यहाँ पर आप लिखें शर्ट और शॉर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स आइटम के अंदर क्या लिखते हैं, हॉकी की स्टिक होती है और बॉल होती है, एक हॉकी की स्टिक और एक बॉल, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर कितने होंगे यहाँ पर, 11 प्लेयर होते हैं हॉकी के अंदर। नेक्स्ट वन इज क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, आउटडोर गेम है, इसलिए मैं ओ लिख रही हूँ। ड्रेस इसकी भी शर्ट और शॉर्ट्स होंगी, ठीक है। और इसके अंदर चीज़ें क्या इस्तेमाल होती हैं, बॉल और बैट, ठीक है, बॉल और बैट यूज़ होता है। इसके अंदर भी 11 प्लेयर्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन भी आउटडोर गेम है। ड्रेस इसके अंदर भी शर्ट और शॉर्ट्स यूज़ किए जाएंगे। स्पोर्ट्स के इसके अंदर चीज़ें क्या मौजूद होंगी बेटा, इसके अंदर रैकेट और शटल क्या यूज़ होंगे, रैकेट और शटल, ठीक है। और इसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, इसके अंदर 2 भी हो सकते हैं और
4 भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल भी एक आउटडोर गेम है। इसका ड्रेस भी शर्ट्स और शॉर्ट्स होते हैं। इसके अंदर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जस्ट फुटबॉल की ज़रूरत होती है इसके अंदर, और इसके अंदर प्लेयर्स भी 11 होते हैं। नेक्स्ट है लूडो। लूडो एक इंडोर गेम है, इसलिए मैं यहाँ पर आई लिख रही हूँ। इंडोर यानी अंदर बैठकर खेले जाने वाली गेम है। इसके अंदर हम कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, कोई ख़ास ड्रेस नहीं होता, कोई भी ड्रेस पहन लें इसके अंदर। इसके अंदर लूडो के अंदर एक लूडो का बोर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसकी जो जिसको हम कहते हैं गोटियाँ कह लें, ठीक है, या फिर उसकी जो, और इसके अंदर प्लेयर जो हैं वो 4 यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल भी एक आउटडोर गेम है, ठीक है। इसके अंदर भी शॉर्ट और शर्ट्स यूज़ किए जाएंगे। इसके अंदर बेसबॉल यूज़ की जाती है, ठीक है, और इसके अंदर प्लेयर्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर के अंदर बेटा सबसे पहले डेफिनेशन है कलेक्टिव नाउन की। व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जब चीज़ों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल होने वाला इसम जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। जब कोई चीज़ें ग्रुप की शक्ल में पड़ी हों उनके लिए इस्तेमाल होने वाला इसम जो है या नाउन है वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर 11 या ज़्यादा जितने भी खिलाड़ी हैं, ठीक है, एक तो नहीं है ना, ज़्यादा सारे हैं, लेकिन इसके लिए हम लफ्ज़ एक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लफ्ज़ क्या है, टीम का, ठीक है। यहाँ पर देखें सोल्जर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स हैं, तो इन सोल्जर्स के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आर्मी का। तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है कि एक लफ्ज़ में हम सारी इतनी सारी चीज़ों को या लोगों को एक्सप्रेस कर दें। देखें यहाँ पर जहाज़ हैं और जहाज़ कोई एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जहाज़ मौजूद हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, फ्लीट। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मवेशी। मवेशी के अंदर ख़ास तौर पे भेड़ों का जो रेवड़ है वो नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ये गायें या भैंसें वगैरह मौजूद हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कैटल। बनानाज हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं गुच्छे की शक्ल में, इसको हम क्या कहेंगे, बंच। इसके बाद इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मजमा इकट्ठा हुआ है कोई भी चीज़ देखने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्राउड, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ सूटेबल कलेक्टिव नाउन्स। ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड्स को, इनको किसी भी एक कलेक्टिव नाउन से हमने क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। फर्स्ट वन, अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड ऑन द बीच, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल कहाँ पर होते हैं, क्राउड के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अ क्राउड गैदर्ड ऑन द बीच, ठीक है। सेकेंड, द मैन टुक हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टू द जू। वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये बेटा जब हम इनको इकट्ठा करें तो हम इनको फैमिली भी तो कह सकते हैं ना, कि ये फैमिली में आएंगे, वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द मैन टुक हिज फैमिली टू द जू। नेक्स्ट थर्ड वन, द ग्रुप ऑफ काउज ग्रेज्ड ऑन द हिल। अब ग्रुप ऑफ काउ जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैटल कहेंगे। द कैटल ग्रेज्ड ऑन द हिल। फोर्थ वन, द कैप्टन लेड हिज ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टू द ग्राउंड। ग्रुप ऑफ प्लेयर को हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। द कैप्टन लेड हिज टीम टू द ग्राउंड। फिफ्थ वन, द चिल्ड्रन गेव द चीफ गेस्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर। कलेक्शन ऑफ फ्लावर को बेटा हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्लावर को हम बुके कहते हैं, ठीक है, BOUQUET, बुके। अब हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले के अंदर हम क्या कहेंगे, क्राउड, सेकंड वाले में फैमिली, थर्ड वाले में कैटल, फोर्थ वाले में टीम, और फिफ्थ वाले में बुके। नेक्स्ट है प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप। प्रोनाउन की उसके एंटीसीडेंट से मुताबिकत होना ज़रूरी है। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रोनाउन एंड अ वर्ड्स ऑफ इट स्टैंड फॉर। हाँ जी, प्रोनाउन जो है उसके और जो लफ्ज़ हैं उनके दरमियान के अंदर जो मुताबिकत होती है, इसको हम प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहते हैं। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट विद 3 वेज, 3 तरीके होते हैं, जेंडर, पर्सन और नंबर, ठीक है। अब कैसे, जैसा कि देखें एग्जांपल दी गई, द बॉय लॉस्ट हिज बॉल।
तो बॉय लड़का था, तो उसको उसके साथ मुताबिकत वाला लफ्ज़ क्या है? हिज है। ठीक है, यानी कि हिज से हमें पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है? बॉय की बात हो रही है। आ गई समझ? इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन एंटीसीडेंट। In the above sentence, the noun boy is the antecedent of the pronoun his. Next, B question. Read these two paragraphs. इन दो paragraphs को पढ़ें. First one, Kaleem was the goalkeeper. Kaleem went down on Kaleem's knees. Kaleem got the hockey in Kaleem's hands and held the hockey strongly. Kaleem smiled behind the Kaleem's helmet. ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया कि इसको मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि कलीम एक अच्छा गोलकीपर था। कलीम जो था वो घुटनों के बल बैठा। कलीम ने हॉकी जो है उसको उठाई और अपने हाथों में कलीम के हाथों में हॉकी को उठाया और उसे स्ट्रांगली पकड़ लिया। कलीम स्माइल्ड, कलीम मुस्कुराया। बिहाइंड कलीम्स हेलमेट, कलीम के हेलमेट के पीछे। ठीक है, ये हो गया पैराग्राफ 1। अब पैराग्राफ 2 की रीडिंग करते हैं। कलीम वॉज द गोलकीपर. He went down on his knees. He got the hockey in his hand and held it strongly. He smiled behind his helmet. सेकेंड पैराग्राफ के अंदर बेटा बता रहे हैं कि कलीम एक गोलकीपर था। वो अपने घुटनों के बल नीचे हुआ। उसने हॉकी को अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया। वो अपने हेलमेट के पीछे से मुस्कुराया। तो दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? विच पैराग्राफ इज़ मोर अप्रोप्रिएट एंड वाई? दोनों पैराग्राफ में से कौन सा पैराग्राफ सबसे ज़्यादा मुनासिब था और क्यों? तो देखें, पैराग्राफ 2 जो था वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। रीज़न क्या लिखेंगे आप? मैं बोल रही हूँ, आप लिखें। पैराग्राफ 2 इज़ मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज हेयर कलीम इज़ नॉट रिपीटेड एंड ही इज़ यूज्ड एज अ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ कलीम। दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो था वो सबसे ज़्यादा ठीक था या मुनासिब था क्योंकि कलीम का लफ्ज़ बार बार रिपीट नहीं हुआ। देखे, पैराग्राफ 2 में सिर्फ एक बार कलीम आया है, जबकि पैराग्राफ 1 में 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा एक पैराग्राफ के अंदर कलीम का वर्ड मतलब कि किया गया यूज़। तो इस वजह से ये पैराग्राफ जो है प्रॉपर या मुनासिब नहीं है, जबकि पैराग्राफ 2 के अंदर सिर्फ एक बार कलीम यूज़ किया गया है और फिर बार बार जो यूज़ कलीम का वर्ड यूज़ करने के बजाय ही और का वर्ड जो है एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से फ़िक्रे की खूबसूरती आती है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन। जॉइन एंटीसीडेंट विद इट्स रेफरेंट इन ईच सेंटेंस। करेक्ट द रॉन्ग प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप। हाँ जी, इसके अंदर प्रोनाउन और एंटीसीडेंट को हमने ज्वाइन करना है और जो गलत हैं उनको ठीक करना है। ठीक है, फर्स्ट वन जैसे उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, द कैट विल स्लीप इन इट्स बास्केट। कैट और इट्स जो है ये क्या एक दूसरे के प्रोनाउन एंटीसीडेंट है। सेकंड वन, समरा इज़ लुकिंग फॉर हिज वॉच। यहाँ पे गलती है, हिज जो है ये गलत इन्होंने यूज़ किया हुआ एंटीसीडेंट जो है रेफरेंट है, क्योंकि समरा क्या है? लड़की है, तो यहाँ पर आएगा हर। ठीक है, और हर आएगा यहाँ पर HER हर। और समरा और हर जो है आपस में एक दूसरे क्या होंगे? एंटीसीडेंट। थर्ड वन, अली एंड साद हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ पर गलत है क्योंकि अली एंड साद क्या है बेटा? प्लूरल हैं। जब प्लूरल होते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? देयर वर्क। अली एंड साद हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो यहाँ पर जब देयर आएगा तो अली और साद जो है उसका एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा? देयर। फोर्थ वन, आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर पेन। आई विल ब्रिंग मी अप न्यू वन टमोरो। तो यहाँ पर जो मी है वो गलत है, आप यहाँ पर यू लिखेंगे। आई विल ब्रिंग यू अ न्यू वन टमोरो। ठीक है, और आई जो है वो किसका होगा? यू का। नेक्स्ट है, वेयर इज़ माई बैग। मेरा बैग कहाँ है? आई कैन नॉट फाइंड हर। नहीं, यहाँ पर बैग जो है, बैग का एंटीसीडेंट क्या है? हर नहीं होगा, बैग का एंटीसीडेंट होगा इट। यहाँ पर आप इट लिखेंगे और बैग का एंटीसीडेंट इट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, फ्यूचर टेंस विल। फ्यूचर टेंस के अंदर विल का यूज़ कैसे होगा? वी ऑफन यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस टू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। वी आर सेइंग व्हाट वी थिंक विल हैपन। व्हेन वी फॉर्म द फ्यूचर विद विल, वी यूज़ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर टेंस के अंदर बेटा हम ये बताते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, या हम सोच जो रहे होते हैं क्या वैसा होगा।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, विल का वर्ड यूज़ करते हैं और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर, आई विल प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलूँगा। आई विल पार्टिसिपेट इन रेस, मैं रेस के अंदर पार्टिसिपेट करूँगा। आई विल टेक पार्ट इन द वॉलीबॉल मैच, मैं वॉलीबॉल मैच के अंदर हिस्सा लूँगा। नेक्स्ट वन बेटा, लुक एट द दिस लिस्ट ऑफ ग्रेड 6 चिल्ड्रन, नेक्स्ट टू देयर नेम्स आर लिस्ट ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट दे विल डू व्हेन दे ग्रो अप। अब छठी क्लास के तालिब इल्म की ख्वाहिशात और ख्वाबों के इजहार के लिए विल का इस्तेमाल करके खाली जगह को पुर करें। जैसा कि अली है, उसने पायलट बनना है फॉर एग्जांपल, तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, अली विल बी आ पायलट, ठीक है। सना जो है उसने डॉक्टर बनना है, तो हम क्या लिखेंगे, सना विल वर्क इन हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हामिद ने पुलिसमैन बनना है, तो हामिद विल बी अ पुलिसमैन। फातिमा विल वर्क इन अ हॉस्पिटल एज अ नर्स। नेक्स्ट वन, साकिब विल बी एन अकाउंटेंट। नोमान विल बी अ पेंटर। फवाद विल बी अ लॉयर, ठीक है। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, नाउ फिल द लिस्ट गिवन बिलो यूजिंग विल टू डिस्क्राइब विशेस एंड ड्रीम्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट। इसके अंदर बेटा सेम, मतलब कि जो अभी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं, आप सेम उसी तरीके से यहाँ पर इनको फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन, रीड दीज वर्ड्स अलाउड एंड मेक सेंटेंसेस। हाँ जी, इनको अलाउड ऊंची आवाज़ में पढ़ें और इनके जुमले बनाते जाएं। फर्स्ट वन इज फिल, फिल एंड फील, ठीक है। फिल होता है भरना और फील होता है महसूस करना। तो फिल का सेंटेंस होगा प्लीज़ फिल दिस ग्लास विद वाटर, और फील का होगा महसूस करना, डू यू फील द हीट ऑफ द फ्लेम। नेक्स्ट है शिप, शिप होता है जहाज़, बहरी जहाज़ द नेम ऑफ अ बिग शिप, एंड शीप होता है भेड़, शी इज़ कुकिंग द मीट ऑफ शीप। फिट, फिट होता है मौजू, जैन इज़ क्वाइट फिट फॉर द गेम्स, फीट होता है पाँव, ही वॉज वॉकिंग विद बेयर फीट। नेक्स्ट वन पिन, पिन होता है सुई, कॉमन पिन्स आर यूज्ड इन ऑफिसेज, पाइन सरसब्ज दरख्त, पाइन ट्रीज वर ग्रोइंग अलोंग द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट राइटिंग स्किल्स। फर्स्ट वन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। हाँ जी, इन सेंटेंसेज को हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। फर्स्ट वन, आई विल गो टू द मार्केट टुडे, अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो विल के फ़ौरन बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। आई विल नॉट गो टू द मार्केट टुडे, विल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है। और जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे बेटा, तो विल को उठाकर कहाँ ले जाएंगे, स्टार्ट में, विल आई गो टू द मार्केट टुडे, और लास्ट पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वन, यू विल प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलोगे, अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो विल के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे, यू विल नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव में यानी कि सवालिया जुमले में चेंज करेंगे तो विल को कहाँ ले आएंगे, हम इसको स्टार्ट में, विल यू प्ले हॉकी, और लास्ट पे हम इसके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। थर्ड वन, शी विल कंप्लीट हर वर्क, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव बनाएं तो शी विल नॉट कंप्लीट हर वर्क, और इंटेरोगेटिव के लिए विल को स्टार्ट में ले आएंगे, विल शी कंप्लीट हर वर्क, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फोर्थ वन, दे विल रीच लाहौर टू टुमारो, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए दे विल नॉट रीच लाहौर टुमारो, और इंटेरोगेटिव के लिए विल दे रीच लाहौर टुमारो, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ वन, द वेट शर्ट विल ड्राई इन द सन, तो अगर इसको नेगेटिव में चेंज करें, द वेट शर्ट विल नॉट ड्राई इन द सन, और इंटरोगेटिव के लिए विल द वेट शर्ट ड्राई इन द सन, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा ग्लोसरी क्वेश्चन, ज़ख़ीरा अल्फाज जिसको हम कहते हैं, चीट धोखा देना, इसको सिनोनिम इसका लिखा हुआ है वायलेट रूल्स डिसऑनेस्टली। फाइनलाइज हतमी या मुकम्मल करना, टू सेटल ऑन मिस्टेक गलती, a wrong action arising from faulty judgment, nurture परवान चढ़ाना, encourage the development of feeling, official दफ्तरी, relating to an office or position of authority, participate हिस्सा लेना, take part or be involved in it. Next permission, permission होता है इजाज़त, a formal consent, preparation तैयारी, the process of preparation of being prepared, quitter जल्द पीछे हटने वाला, समवन हु गिव्स अप टू इजीली, रेस दौड़,
a contest of speed in running, sense, शऊर या अकल, an awareness or an ability to make judgment regarding some specified things, sportsmanship, खिलाड़ीपन या इंसाफ पसंदी, playing fair, sticking to the rules and accepting defeat without any feelings of bitterness, striving, जदोजहद करना means struggling, yelling, चिल्लाना, shouting और crying loudly. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर. आई होप बेटा आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी. हमने इसके अंदर जितने भी ग्रामर पोर्शन किया है या कॉम्प्रिहेंशन किया, आपने उसको अच्छी तरीके से याद करना है और इसकी तैयारी करनी है. बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें. शुक्रिया.